ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. Hello, good morning children. How are you all? I hope you all are fine. Okay children, now in this session we are going to study the class 4th subject English unit 5 hobbies, and in this unit there is a poem by name My Hobby. Children, once again I welcome you to Samveda e-classes, and I request you all to be ready with your textbook, notebook and pencil. Okay children, are you ready with your study materials? Very good. Children, before starting today's class, let's watch a video children. Okay? Reading books. I like reading books in the library. Reading books. Shh. I love playing basketball after school. Playing basketball. Riding a bicycle. I enjoy riding a bicycle in the park. Riding a bicycle. Watching TV. I like watching TV on the weekend. Watching TV. Cooking. I love cooking for my parents. Cooking. Taking photographs. I love taking photos of my pet. Taking photographs. Playing games. I love playing games with my brother. Playing games. I like playing the guitar. Playing the guitar. Playing the guitar. I love singing in front of people. Singing. Singing. Listening to music. I love listening to music before I go to sleep. Listening to music. Review. Cooking. Listening to music. Playing basketball. Playing games. Playing the guitar. Riding a bicycle. Singing. Taking photographs. Watching TV. Okay children, how was the video? Did you enjoy this? Very good, it was very interesting. What did you see in the poem? What did you see in this video? Okay, tell me. Very good. A girl was telling us about what she likes to do. What the girl likes to do, she was telling to us. बच्चों, उस नज़म में एक लड़की हमें बता रही थी
कि वो क्या क्या करना पसंद करती है और वो क्या क्या करती है. ओके चिल्ड्रन, नाउ हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू. इज देयर एनी पर्टिकुलर वर्ड फॉर दैट एक्टिविटी? बच्चों, वो लड़की जो जो भी काम कर रही थी, क्या उन कामों को हम एक कोई खास एक लफ्ज है उसके लिए? ओके, ट्राई टू आंसर. यस, देयर इज अ वर्ड. व्हाट इज दैट वर्ड? इट इज हॉबी. चिल्ड्रन, whatever we do in our free time, in our spare time, we can say it as hobby. Let's look here children. Hobby means an activity which someone does for pleasure in spare time. It is the main word. बच्चों, हॉबी के माने आप समझे कि कोई भी ऐसा काम जिसे हम अपने खाली वक्त में करते हैं, अपने फ्री टाइम में जो हम काम करते हैं, उसे हॉबी कहते हैं. हम अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर काम करने को नहीं, बल्कि हमारे रोज़ाना मामूल के जो हमारे ज़रूरी काम हैं, उन कामों को करते हुए अगर हमारे पास खाली वक्त बचता है, फ्री टाइम होता है, तो ऐसे वक्त में हम जो काम करते हैं, चाहे खेल खेलते हो, चाहे ड्राइंग करते हो, चाहे और कोई काम, कुछ लड़कियां हैं आप मेहंदी डिज़ाइन उतार सकते हैं, कपड़ों के ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क करते हैं, मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं, तो ऐसे जो काम जो फ्री टाइम में हम काम करते हैं उन्हें हॉबी कहते हैं. और इसे उर्दू में मशगला कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों? वेरी गुड, मशगला. सी हियर चिल्ड्रन, इन दिस इमेज ए गर्ल एंड ए बॉय आर डांसिंग. सो डांसिंग इज ए हॉबी. Like that, in this image, what is the boy doing? Yes, he is painting. In this image, what is the girl doing? Yes, the girl is cooking. And in this image, fish keeping. Fish keeping माने मछलियों को पालना. अपने घरों में एक एक्वेरियम लाकर उसमें तरह तरह के रंग बिरंगे नई नई अनवा के मछलियों को जो पालते हैं, वो भी एक तरह का हॉबी है. और प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट मीन्स जो भी एक, चाहे गिटार हो, चाहे फ्लूट हो, चाहे बांसुरी बजाना हो, या आप म्यूजिकल कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो हम बजाते हैं वो. और सिंगिंग, रीडिंग, प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स. Not only computer games, playing mobile game as well, and here listening to music. So children, all these activities, when we do it in our free time or spare time, we can say it as our hobby. बच्चों, हॉबी के माने समझ गए ना आप? हॉबी यानी मशगला. कोई भी ऐसा काम जो हम अपने खाली वक्त में अपने दिल को बहलाने के लिए करते हैं, उसे हॉबी कहते हैं. ओके चिल्ड्रन, सी हियर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बाय अडॉप्टिंग गुड हॉबीज वी कैन गेट नेम एंड फेम. बच्चों, हम अच्छे हॉबीज़ को अपनाने से ना सिर्फ हमारा टाइम पास होता है, बल्कि हम उसमें एक्सपर्ट होने से हम दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम कमा सकते हैं. फेम, शोहरत कमा सकते हैं, हम दुनिया में मशहूर हो सकते हैं. जैसे कि ये लोग मशहूर हुए, इन्हें पूरी दुनिया में जाना जाता है. कौन है ये? सानिया मिर्ज़ा. सानिया मिर्ज़ा ए टेनिस प्लेयर, एंड हियर विराट कोहली, रोहित शर्मा. दीज प्लेयर्स, they selected cricket as their hobby and they became perfect in it, they became expert in it, and now they are getting good name and fame. Okay children, now see here, open your textbook and see page number 68. Okay children, now open your textbook and see page number 68. Here it is. Okay children, did you see?
वेरी गुड बच्चों, आप अपनी दरसी किताब को खोलें और सफ़ा नंबर 68 को देखें। ये पेज है वहाँ पर। इन दिस इमेज हियर इज ए पोयम। हियर इज अ पोयम। चिल्ड्रन, कैन यू टेल मी हु हैज़ रिटन दिस पोयम? बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि ये जो नज़म है माई हॉबी, इसको कौन लिखे हैं? हियर इज द नेम, anonymous. Can you tell me, is it the name of the writer, name of the poet? No. बच्चों, ये इस नज़म को लिखने वाले का नाम नहीं है। anonymous का मतलब होता है नामालूम। हमें मालूम नहीं ये नज़म कौन लिखे हैं, इसलिए वहाँ पर anonymous लिखा जाता है। Children, when we don't know the name of the writer or the name of the poet, then we can simply write anonymous. Now children, we are going to read this poem, but before going through this poem, we should be aware of the words meanings. Okay children, हमें इस नज़म को पढ़ने से पहले इनमें जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके माने अगर हमें समझ में आ जाएं पहले से, तो हम इस नज़म को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। So let's know the new words. Okay children, see here the word is sketch. Sketch means draw, और इसको ing लगाइए, drawing. Sketch means draw करना, paint करना। Look this image, it is drawing. Now come to the next one, enchanting. Enchanting means attractive. Attractive means something which attracts our attention. बच्चों, कोई ऐसी चीज़ जो हमारी तवज्जो को अपनी तरफ खींचे, उसे अट्रैक्टिव कहते हैं। जैसे अगर हम रास्ते से गुजर रहे हों, वहाँ पर ऐसी सीन नज़र आए हमें, क्या हम इसे नज़रअंदाज करते हैं? नहीं, बल्कि हम जैसे ही इस पर नज़र पड़ी हम इसे और गौर से देखते हैं, क्योंकि ये चीज़ अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, एन्चैंट करती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड, सीरीन। चिल्ड्रन, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरीन? यस, इट इज काम, काम, पीसफुल, एकदम सुकून का माहौल, जहाँ पर कोई शोर शराबा, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। लुक एट दिस इमेज, a man is doing some exercise here, yoga, and how is the climate? Very serene, very calm. Now here one more word is there, cherished. Cherished means desired, something we want. बच्चों, cherished के माने होते हैं ख्वाहिश किया हुआ, पसंद किया हुआ, जिसे हम पाने की ख्वाहिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इमेज देखिए, कप है। अगर आप किसी रेस में हिस्सा ले रहे हो तो आपकी ख्वाहिश होती है कि आप डिज़ायर करते हैं, यू डिज़ायर, यू चेरिश्ड टू गेट दैट मेडल। ओके चिल्ड्रन, चेरिश्ड मीन्स डिज़ायर्ड। लुक हियर, वन सेंटेंस इज देयर, सलीम चेरिश्ड टू गेट फर्स्ट प्राइज इन द रेस। सलीम रेस में फर्स्ट प्राइज लेने की चेरिश्ड, डिजायर्ड करता है, ख्वाहिश करता है वो। नाउ चिल्ड्रन, हियर वी आर गोइंग टू रीड दिस पोयम। ओके चिल्ड्रन, बच्चों, अब मैं इस नज़म को एक एक लफ्ज़ करके पहले पढ़ूंगा, आप गौर से इसको सुनेंगे और देखेंगे कि किस वर्ड को कैसे पढ़ा जाए। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हम फिर नज़म को समझने की कोशिश करेंगे। Okay children, let's come. The sky is blue as the heavens. The crowd nowhere to be found. The birds are happy singing. Oh, what an enchanting sound. Okay children, now come to the next second stanza. Here
No one knows why I do this. Why I sit hours carelessly away. This sketching is my hobby. This world of beauty is where I play. Now, here is the third and the last stanza. So, now I lie here drawing. Oh, what a beautiful scene. This world is my cherished love, so peaceful, so serene. Okay, children, did you listen carefully? Very good. I hope you have listened and as well as observed this screen. Okay, children. Now, we are going to understand the lesson, understand the poem. बच्चों, अब हम इस नज़म में शायर क्या कहना चाह रहा है, उसने क्या क्या मालूमात दी हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे. अभी तो हमने सिर्फ पढ़ा उसे, अब हम उसे समझेंगे कि शायर क्या कहना चाह रहा है. द पोएट व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल अस. हियर द फर्स्ट 2 lines of the poem. Okay, children. The sky is blue as the heavens. The crowd nowhere to be found. Sky means asman. How is the sky? It is blue. Blue as the heavens. जन्नत. आसमान क्या है? जन्नत की तरह नीला कलर का है. और द क्राउड नोवेयर टू बी फाउंड. और यहाँ पर आपको कई लोगों की भीड़ या मोटरसाइकिलों की, गाड़ियों की भीड़ या कोई जानवर कुछ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि एकदम साफ सुथरा, एकदम क्लीन है. यहाँ पर क्राउड नहीं है. द बर्ड्स आर हैप्पी सिंगिंग. ओह, व्हाट एन एन्चेंटिंग साउंड. एंड द बर्ड्स, परिंदे खुशी से गा रहे हैं, हैप्पीली सिंगिंग. एंड द साउंड ऑफ द बर्ड सिंगिंग, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल साउंड. ओके, what an enchanting sound. See here, no one knows why I do this. कोई नहीं जानता मैं ये क्यों करता हूं. Who is telling that? कौन कह रहा है ये? शायर कह रहा है. Why I do this? मैं ये क्यों करता हूं. वो क्या कर रहा है शायर? Let's see. He is explaining in the further lines. Okay, children. Why I sit hours carelessly away. The poet, he sit carelessly, किसी का सोचे बगैर, बेफिक्र होकर. away, away मतलब अपने घर से दूर, अपने गांव से दूर जाकर hours, घंटों बैठ जाता है वहां पर जंगल में. This sketching is my hobby. This world of beauty is where I play. In this line, in this particular line, the poet is saying that this sketching is my hobby. Look here, what is the girl doing? She is about to sketch, she is about to draw something. So, बच्चों, शायर का भी जो हॉबी है, स्केचिंग इज माई हॉबी. ड्राइंग करना, स्केचिंग करना इसका मशगला है, इसकी हॉबी है. इसलिए वो गांव से, घर से दूर, आसमान पर, जंगल में जाकर, जहाँ पर कोई शोर शराबा ना हो, घंटों बैठकर वो स्केचिंग करता है. See here the last stanza. So now I lie here drawing. Children, one more word is here, lie. Lie means लेट जाना. The poet, he draw by lying on the grass, lying on the ground. शायर वहां पर जंगल में जाकर घास पर लेट कर ड्राइंग करता है वो. ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन. जब वो लेटता है, लेट कर सामने का नज़ारा देखता है, तो वो जो सीन जो उसको दिखता है, दिल को एकदम लुभाने वाला, वो तारीफ करता है कुदरत की कि ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, कितना अच्छा नज़ारा है.
खुले आसमान हैं, नीला आसमान, बादल, दरख्त, परिंदे. वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन. दिस वर्ल्ड इज माई चेरिस्ड लव. शायर चेरिस्ड, उसने डिजायर किया था कि उसकी दुनिया इस तरह एकदम पुरसुकून, इत्मीनान बख्श हो. सो पीसफुल, सो सीरीन. हाउ इज दिस in this image? How is the climate? How is the surroundings? Very peaceful, very serene. Okay children, बच्चों आपने अभी इस नज़म को समझा कि शायर उसमें क्या क्या लिखा है, अपने कौन कौन से ख्यालात को आपके सामने पेश कर रहा है नज़म के ज़रिए. अब बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं. लेट्स चेक हाउ मच हैव यू अंडरस्टैंड दिस पोएम. बच्चों अब मैं आपको जांचूंगा कि आपने उस नज़म को कितना समझा है. आर यू रेडी चिल्ड्रन? लेट्स सी. हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. टू थिंग्स आर कंपेयर्ड. व्हाट आर दे? डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? बच्चों आपने सवाल को समझा? दो चीज़ों को मवाजना किया गया है, कंपेयर किया गया है उस नज़म में. What are they? क्या हैं वो दो चीज़ें? Very good. It is. These are the sky and the heaven. The sky is blue as the heaven. So children, the answer is sky and heaven. These two things are compared. Very good children. See here, question number 2. What is the enchanting sound? What is the enchanting sound? वो कौन सी आवाज़ है जो एकदम अट्रैक्टिव थी, दिलकश थी? वेरी गुड चिल्ड्रन. द साउंड ऑफ बर्ड सिंगिंग बर्ड. वेरी गुड चिल्ड्रन, you are excellent. Here the question number 3 is here. What is the hobby of the speaker? Speaker means poet. What is the hobby? Very good. Sketching, drawing. So the drawing is the hobby of the speaker. Let's see, two more questions are here. Question number 4. The speaker says he sits carelessly away because. स्पीकर कहने वाला, नज़म शायर कह रहा है कि वो बेफिक्र होकर अवे गांव से, घर से दूर जाकर बैठता है. क्यों? बिकॉज, क्योंकि ही इज़ लेजी, वो बहुत सुस्त और काहिल है. ही लव्स नेचर, उसे नेचर पसंद है, कुदरती फितरी चीज़ें पसंद है उसे. या ही हेट्स क्राउड. So he hates crowd. So which is the correct answer, children? Yes, it is. He loves the nature. That's why he goes away to the forest, to the jungle. Very good, children. Here is the last question. The speaker says the world is dash and dash. शायर कह रहा है कि ये दुनिया dash और dash है. You can find the answer in the last line of the poem, children. Very good. Those words are so peaceful, so serene. So peaceful and so serene. Very good, children. You are excellent. Now, children, here are the answers of those questions. Okay, children. बच्चों यहाँ पर उन पांचों सवालात के जवाबात लिखे गए हैं. मैंने अभी एक्सप्लेन किया और आपने देखा, उनके जवाबात यहाँ पर लिखे गए हैं. इन्हें गौर से अच्छी तरह से पढ़कर याद कर लीजिए. आपको अपनी नोटबुक में लिखना है इसे. ओके चिल्ड्रन, विल यू राइट? आई होप यू विल राइट डाउन द आंसर्स इन योर नोटबुक. ओके चिल्ड्रन, नाउ सी हियर द पोएम. नाउ आई एम गोइंग टू सिंग दिस पोएम. बच्चों, अब मैं इस नज़म को गाने वाला हूं. हमने इसी नज़म को सब में पहले क्या किया? पहले एक एक लफ्ज़ को पढ़ा, पूरी नज़म को एक एक लफ्ज़ पढ़े हम. सेकेंड टाइम में क्या किए हम? इसमें शायर क्या कहना चाह रहा है उसको समझे. और अब हम इसको एक गाना गाए तरह, जैसे हम नज़में गाते हैं, देशभक्ति गीत गाते हैं, उसी तरह से इसको हम गाने का सीखेंगे.
my hobby. The sky is blue as the heavens, the crowd nowhere to be found. The birds are happy singing, oh what an enchanting sound. No one knows why I do this, why I sit or carelessly away. This sketching is my hobby, this world of beauty is where I play. So now I lie here drawing, oh what a beautiful scene. This world is my cherished love, so peaceful, so serene. Okay children, did you hear? How was the tune? बच्चों इस नज़म को किस तरह तरन्नुम से पढ़ा गया? Okay, you should also try to recite this poem with this tune, or you can sing in any other tune. Okay children, बच्चों आप इस नज़म को इसी तरन्नुम में भी गुनगुना सकते हैं, या आपको कोई और तरन्नुम इसमें अच्छा सेट करके गाने आता है तो आप गा सकते हैं. But you must memorize the poem and practice reciting the poem. Okay children? Now here is the last phase of this session. What is there? Homework. There is homework for you children. There are 3 instructions. The first one is practice reciting the whole poem with rhythm and recite. बच्चों आपको ये पूरी नज़म को बाय हार्ट ज़बानी याद करके आपको रिसाइट करना है, रीडिंग करना नहीं है. आपको रीडिंग तो आप पहले करते रहते हैं, इसको एक नज़म की तरह आपको गाने की प्रैक्टिस करना है. एंड रिसाइट इट इन फ्रंट ऑफ पीयर्स और पेरेंट्स और योर टीचर्स. आप अपने दोस्तों या अपने पेरेंट्स या अपने टीचर के सामने आप सुनाइए उनको. द सेकेंड इज लिस्ट एटलीस्ट 5 हॉबीज ऑफ यूअर्स. आपको अपने खुद के 5 हॉबीज़ जो आप फ्री वक्त में जो आप काम करना पसंद करते हैं, आपकी हॉबीज़ जो हैं 5 हॉबीज़ को लिखना है आपको, तुम्हारे योर ओन हॉबीज़. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रा ए पिक्चर ऑफ नेचर कंसिस्टिंग ट्रीज, माउंटेन्स, स्काई, क्लाउड्स एंड ग्रास. बच्चों आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के तहत आपको ड्राइंग उतारनी है. आपको एक वाइट पेपर पर ड्राइंग उतारनी है, और उस ड्राइंग में आपको क्या उतारना है? आपको उतारना है ट्रीज, दरख्त उतारने हैं आपको, और आपको माउंटेन्स, पहाड़ उतारने हैं, और स्काई, नीला आसमान, बादल उतारने हैं, क्लाउड्स एंड द ग्रास. सो एटलीस्ट दीज थिंग्स मस्ट हैव टू बी contain your drawing. Okay children, will you do it? I hope you will do all 3 instructions and this homework. Now children, here I am thanking you. I am Muhammad Ayub, Assistant Teacher, Government Higher Primary School Talmari from Raichur district. Once again, thank you children. See you again. Take care.